ملک اجڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. بلوچستان میں آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. اگر آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لکھیں کہ بلوچستان کو جینے دو. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بلوچستان کو جینے دو. بلوچستان اور کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے، انہیں اندازہ بھی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی یہی حال ہے. فرنٹیر میں آپ دیکھیے دہشت گردوں کے ساتھ جہنم کے کتے کہاں کہاں ان کا دل نہیں چاہا. آگے وقت پنجاب کی سرحد پار کر کے وہ حملے کر رہے ہیں. یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو چل رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اپنی کرنسی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو. ملک اجڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے. آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. اور یہ بات سن لو، بلوچستان میں آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان دن بدن ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. بلوچستان جو علاقہ غیر بن گیا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے بلوچستان کے ایسے علاقے جو ہیں وہاں پر عوام نہیں جا سکتی. عوام تو چھوڑ دیں، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی او، پولیس کی، لا انفورسمنٹ کی جتنی بھی وہاں پر تعیناتیاں ہیں وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. آپ کے سامنے ہم نے نوشکی سے مناظر رکھے تھے جہاں پر پولیس کی گاڑیوں کے اوپر بی ایل اے کے دہشت گردوں کا قبضہ ہے اور وہ پولیس کی گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں. یہ ایک ضلع کی بات نہیں ہے، بہت سارے بلوچستان کے اضلاع ایسے ہیں جہاں پر اس وقت لا انفورسمنٹ کی جگہ پر بی ایل اے نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں. باقاعدہ انہوں نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، عوام کو چیک کرتے ہیں. اور اب تو یہاں تک بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے اضلاع میں وہ اپنی کرنسی لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ طالبان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو چل رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اپنی کرنسی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. تو مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی یہی حال ہے. فرنٹیر میں آپ دیکھیے دہشت گردوں کے ساتھ جہنم کے کتے کہاں کہاں ان کا دل نہیں چاہا. آگے وقت پنجاب کی سرحد پار کر کے وہ حملے کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر اتنا آگے بڑھ کر نکلا. پنجاب پولیس انوالو ہو گئی ٹی ٹی پی کے ساتھ کیونکہ صوبے سے کراس کر کے وہ اس طرف آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ان کتوں کو پکڑ کر شریعت کی سزا کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اگر آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لکھیں کہ بلوچستان کو جینے دو. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بلوچستان کو جینے دو. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ہر وہ شخص یا ہر وہ شخصیت یا ہر وہ گروہ یا ہر وہ ادارہ یا ہر وہ بندہ یا سیاستدان جو بھی آج بلوچستان کے ان حالات کے لیے رسپانسیبل ہے، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے کہ بلوچستان کو جینے دو. تو یہ ضرور لکھیں آپ. اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آواز اٹھائیں تاکہ پوری دنیا تک یہ آواز جائے کہ بلوچستان کو جینے دو. بلوچستان اور کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے، انہیں اندازہ بھی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ کس آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہ انہیں تاریخ کا ادراک ہے، نہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ انہیں لوگوں کے شعور کا اس وقت اندازہ ہے. لوگ کسی اور طرح نکل گئے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، جبکہ یہ بہت پیچھے رہ گئے، 40 سال 50 سال پیچھے. نہ ان سے اب بیانیہ بن رہا ہے اور نہ چیزیں ان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں. ایک بہت بڑا فیلئر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہے اور یہ کسی اور پر ملبہ بھی نہیں ڈال سکتے. یعنی ملبہ کس پہ ڈالیں گے؟ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر کی نہیں کر رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی بھارت ہے اور ہمیں یہ پتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ بھارت کے خلاف جتنا زیادہ ہو سکے وہ آپ اپنے میڈیا کو کوریج دیں.
यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये DGISPR ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज्यादा चीजें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाकयात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, ये उन वाकयात से पहले की बात है कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे DGISPR के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है वो उसको महदूद कर देता है, रिपोर्ट भी करता है। तो यहां अब आप अपना बयानिया कैसे चलाएंगे? इन हालात में ये जो तजर्बेकार टीम है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी किस्मत में मैं यही कहूंगा कि हमेशा कोई ऐसी कामयाबी नहीं लिखी बल्कि नाकामी लिखी है, भले वो SIFC हो, भले ग्रीन इनिशिएटिव हो, भले $100 अरब की इन्वेस्टमेंट हो, या और बाकी तमाम चीजें जो क्लेम उन्होंने किए थे स्मगलिंग खत्म करने से लेके एक्सपोर्ट बढ़ाने तक के, वो तमाम चीजों में नाकामी के बाद लगता है कि अब फील्ड मार्शल साहब की किस्मत में एक और नाकामी है और वो बलूचिस्तान का मामला है। गौर कीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर मामला किस कदर खराब है और इनका सोल्यूशन क्या है। इनका सोल्यूशन ये है कि हमने मजीद डिवीजन और इजला बना देने हैं। ये ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद में हर 6 महीने के बाद ये यूनियन काउंसिल्स नई बनाते हैं फिर खत्म करते हैं, नई हल्काबंदी करते हैं फिर खत्म करते हैं। चलें, इस्लामाबाद के अंदर ऐसे हालात नहीं है, वहां तो कम अज कम ये इलेक्शन से भागते हैं। लेकिन जो कुछ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो समझ से बाहर है कि जहां पर इतनी खूनरेजी हो रही है, इतनी दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर हल देखिए ये तजर्बेकार, बल्कि तजर्बे नहीं तजर्बेकार मैं इन्हें कहूंगा, ये टीम क्या लेके आई है। एक तरफ नून लीग की और दूसरी तरफ जर्नल्स की, कि बजाय बलूचिस्तान के अंदर कोई देरपा अमन के लिए कुछ करते, वो कहते हैं कि हमने मजीद अजला बना दिए हैं और मजीद डिवीजन बना दिए हैं। कहते हैं कि कोयटा जिला को कोयटा ईस्ट और कोयटा वेस्ट में तकसीम कर दिया है, जबकि मस्तौंग को कल्लात से अलग करके कोयटा डिवीजन में शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से कल्लात डिवीजन खत्म करके खुजदार और लसबेला के नए डिवीजन कायम किए गए हैं, जबकि बरशोर और वड को नए इजला का दर्जा दे दिया गया है। कर लें बातें। जो पहले अजला हैं, हाल ही में आपके सामने हमने जियारत के जो डिप्टी कमिश्नर का बयान रखा था, जिन्होंने कहा था कि ना आप महफूज हैं ना मैं महफूज हूं। जियारत के डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा था आवाम को कि ना आप महफूज हैं ना ही मैं महफूज हूं। मतलब जो पहले अजला हैं उनके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हम महफूज नहीं हैं। शाम तक ही वहां पर मेरा ख्याल है कि लोग 2-3 बजे तक सफर करते हैं, उसके बाद सड़कें सुनसान हो जाती हैं, गुमनाम हो जाती हैं, क्योंकि उस पर BLA के दहशतगर्दों का राज होता है। कुछ इलाके तो ऐसे ही हैं जहां 24 घंटे ही उन दहशतगर्दों का राज है। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने इसका सोल्यूशन करना है नई डिवीजन और नए जिले बना के। है ना तजर्बेकार टीम? तो ये आपको एक और ट्रक की बत्ती है। इस नए जिले बनाने से मुझे बताइए कि क्या तब्दीली आ जाए। मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान के मीडिया को तो लोग सुनते ही नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई खबर दे ही नहीं सकते। तो जब हम ये खबरें देंगे तो लोग इनका असर ही नहीं लेंगे। जब ये कहा गया तो DGISPR ने कहा जी आपको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, आप कुर्बान कर दें अपने चैनल्स और आप पाकिस्तान की खातिर इतना नहीं कर सकते, तो आपको भारत के खिलाफ बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो और तरफ ले गए मामले को, जबकि कहा यह गया था कि आपने तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर चल नहीं रही कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, तो आप हमें यह कह रहे हैं कि हम ये खबर चला देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, हालांकि हमारी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म है। हम तो किसी और बैनुल अक़वामी मीडिया को कोट भी नहीं कर सकते इस मामले में। फिर एक सवाल किया गया, लेकिन DGISPR ने पहले इससे एक जो है वो
दावा किया। उन्होंने कहा जी सिंध तास मुआहदे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ठोक देंगे, मौका आएगा हम ठोक देंगे, हम अपना पानी भारत को नहीं देंगे। इस पे एक सहाफी ने पूछा कि जनाब आप बताएं कि आप करेंगे क्या, भारत ने आपका पानी रोक लिया है, इस वक्त रोका हुआ है, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? क्या आप भारत पे हमला करेंगे पानी छुड़वाने के लिए? तो DGISPR ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए कि भारत पे हमला करेंगे या पानी को जबरदस्ती छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे। फिर एक और सवाल किया गया कि जनाब आप ये कहते हैं कि भारत टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, अगर एक मुल्क टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, वो टूट रहा है, तो फिर आप उसके साथ इस वक्त जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के राउंड्स भी हो चुके हैं 2-3, और ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान ने इसकी कहीं पे कोई तरदीद नहीं की। किसी जगह पे पाकिस्तान की सरकार से जब सवाल किया गया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने किया कि जनाब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की। जो खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में आई उनमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद नहीं की कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के भारत के साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं और डिप्लोमेसी की जा रही है कि पानी हमारा छोड़ दें। मैं इसके हक में होना चाहिए राब्ता, पानी अपना छुड़वाना चाहिए, लेकिन अगर एक मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुल्क टूटने जा रहा है, तो ऐसे मुल्क जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या? आप उसके साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्यों करते हैं? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।